Ovarian cysts are just like fluid-filled sacs, and they form on the ovary. Ovary is the side, on the side of the uterus we have the tubes and we have the two ovaries जहाँ से हर महीने एक एग निकलता है. जहाँ से एग निकलता है that is the two structures which we call ovaries. और इसमें कभी-कभी cysts बन जाती हैं and they are called ovarian cysts. All our diseases in gynae are mostly related to hormones, so that is why they are much more common in the menstruating females. इसमें बड़े different types of tissue पाए जाते हैं. You can find skin, teeth, bones, abdomen में आ जाती है तो इतनी बड़ी स्पेस हो जाती है, so then they can twist over themselves. It is called a torsion. नमस्कार, पंजाब केसरी की स्पेशल सीरीज लड़कियों के राज में आप सभी का स्वागत है. मैं हूं आपके साथ ऋषिभा. इस शो में हम महिलाओं के शरीर से जुड़े उन विषयों पर बात करते हैं जिन पर बात करने से आप कहीं ना कहीं हिचकिचाते हैं, शर्माते हैं या फिर घबराते हैं. आज लड़कियों के राज में बात होगी यूटेराइन फाइब्रॉइड्स और ओवेरियन सिस्ट की, और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फोर्टिस हॉस्पिटल की सीनियर कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनोकोलॉजिस्ट सुप्रिया मल्होत्रा. मैम, बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी में. Thank you so much, Rishiba, for having me. It's my pleasure and honor to be here. अब बात कर लेते हैं ओवेरियन सिस्ट की. तो सबसे पहले जानेंगे कि ओवेरियन सिस्ट है क्या, कहाँ, कैसे ये होता है और इसके पीछे के जो कारण हैं वो क्या हैं. Ovarian cysts are just like fluid-filled sacs, and they form on the ovary. Ovary is the side, on the side of the uterus we have the tubes and we have the two ovaries जहाँ से हर महीने एक एग निकलता है, जिसके साथ हम हमारी लेडीज में when they unite with the sperm the pregnancies happen. So जहाँ से एग निकलता है that is the two structures which we call ovaries. और इसमें कभी-कभी cysts बन जाती हैं and they are called ovarian cysts. Now ovarian cysts are also very common. They occur mostly because all our diseases in gynae are mostly related to hormones, so that is why they are much more common in the menstruating females. So they are more common between the age of 15 to 40 years of age. But ये देखा गया है कि अगर ovarians, and they are mostly benign during this time, but if the ovarian cysts form at the time of menarche, that is जब periods शुरू हो रहे हैं और perimenopause या menopause के बाद, then those cysts are not mostly benign and they need to be properly investigated because they are mostly not of a good nature and they need to be treated and we cannot overlook them. जो अभी menstruating period में पाई जाती हैं, हमारी दो तरह की cysts होती हैं. One we call physiological cysts. Physiological cysts means which the chances of cancer are very less, and one is the pathological cysts. That is they can turn cancerous. अभी जो हमारी physiological cysts होती हैं, they can be two types of cysts. एक हम कहते हैं follicular cysts, एक हम कहते हैं corpus luteal cysts. They form during the menstrual cycle for various reasons, and they are mostly about 3 to 4 centimeters. Any cyst which is about 3.5 to 4 centimeters, which we are, and it is clearly seen, which is there is nothing inside, it's just filled with a clear fluid, जो हम ultrasound पे देख सकते हैं. They are no cause for concern. They form with the cycle. They sometimes disappear after 2 to 3 cycles, or we can give treatment to shrink them. So these are two types of physiological cysts which are nothing to worry about. But another kind of cysts are the pathological cysts. और ये होती हैं 2-3 types की, as I said, जो हमारे germ cells से बनती हैं. They are called dermoids. इसमें बड़े different types of tissue पाए जाते हैं. You can find skin, teeth, bones, ऐसे types of tissues पाए जाते हैं. They are the germ cell tumors. They are called dermoids, and they also very often develop in young adolescents. तो that is why I said जो menarche के आसपास younger females में या जो menopause के आसपास पाई जाती हैं, those cysts need to be looked into and investigated and treated. Now dermoids also are very often not cancerous, but they need to be removed. So दूसरी टाइप ऑफ पैथोलॉजिकल सिस्ट होती हैं हमारी जो सरफेस ऑफ द ओवरी से जो टिश्यू होता है उससे बनती हैं. सो दे कैन बी बिनाइन, दे कैन बी कैंसरस. सो हमारी बिनाइन ट्यूमर्स होती हैं, अगर हमको सिस्ट दिखे जो सिम्टम्स कॉज कर रही है, वेरी ऑफन ओवेरियन सिस्ट के बहुत कम सिम्टम्स होते हैं बिकॉज इट इज़ लाइंग विद इन द पेल्विस
इट्स नॉट कॉजिंग एनी सिम्टम्स। थोड़ी सी बड़ी हो जाती है तो सिम्टम्स कॉज करते हैं, और इनके सिम्टम्स बहुत वेग होते हैं, लाइक यू नो जस्ट डिस्पेप्सिया, गैशियस डिस्टेंशन, खाना हजम नहीं होना, irregularity of periods. So if these things happen, you should not just keep sitting, but you should go to the doctor, get yourself examined. Doctor can do an internal examination, और उनको कुछ भी लगे तो अल्ट्रासाउंड से फट से पता लग जाता है। तो इसके लिए अल्ट्रासाउंड जो है वो एक फर्स्ट मोडालिटी इज अल्ट्रासाउंड। फिर अगर हमको डिफ्रेंशिएट करना है, अगर तो पक्का पता लग जाता है कि अल्ट्रासाउंड में डर्मोइड है तो निकालना है, बिकॉज अल्ट्रासाउंड पे जो ये वेरियस टिश्यूज होते हैं लाइक हेयर, स्किन, टीथ, कैल्सिफिकेशन दिख जाती है, सो यू नो इट्स अ डर्मोइड, सो दैट नीड्स टू बी रिमूव्ड डिपेंडिंग ऑन व्हाट द साइज। बहुत छोटा है तो वी कैन वेट एंड वॉच, बट अगर थोड़ा बड़ा हो जाता है एंड वी फाइंड दैट देयर इज नो अदर प्रॉब्लम इन इट, वी कैन जस्ट लेट इट बी। पर अदर टाइप्स ऑफ सिस्ट्स हमको नजर आ जाती है अल्ट्रासाउंड पे, अगर क्लियरली लगता है कि कोई इसमें साइन नहीं है मेलिग्नेंसी का, वी कैन वेट एंड वॉच। बट इफ दे आर वेरी बिग, मोर देन 5 centimeters, then we need to do certain more investigations to be sure that they're not malignant. And the other investigation which we can do is an MRI scan. MRI scan से हमारे को थोड़ा क्लैरिटी मिल जाती है, उसमें ये भी पता लग जाता है कि क्या टिश्यू है, is it going towards malignancy, and then they also see the other parts, कोई ascites तो नहीं है, मतलब abdomen में fluid तो नहीं भर रहा है, कोई lymph nodes तो नहीं है, कोई papilla तो नहीं है इसके अंदर, इसके अंदर कुछ और debris तो नहीं है which points towards malignancy, and then they have to be treated. और एक और टाइप ऑफ सिस्ट आजकल जो बहुत कॉमन है, दैट इज कॉल्ड एन एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट, और समथिंग विच वी कॉल अ चॉकलेट सिस्ट। नाउ दिस इज अ कंडीशन इन द लेडीज विच इज कॉल्ड एंडोमेट्रियोसिस। ये इसमें क्या होता है कि यूट्राइन टिश्यू जो होता है ये यूट्रस के बाहर आ जाता है, एंड वेरी कॉमनली इन द ओवरी। सो जब भी मेंस्ट्रुएशन होती है तो यूट्रस में तो जो मेंस्ट्रुएशन होती है देयर इज एन आउटलेट एंड द ब्लड गोज आउट, बट जब ये ओवरी में हो तो उसमें भी मेंस्ट्रुअल फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता ऐसा करके सिस्ट बन जाती है, जिसमें से लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड जो है वो अब्जॉर्ब हो जाता है, और जो उसका पिगमेंट है हेमोसिड्रिन वो रह जाता है, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट फॉर्म्स अ सिस्ट, which is because this hemosiderin is chocolate colored, so it's sometimes it is called a chocolate cyst. So this is very typical of a condition which is called endometriosis. Now this is also a benign condition, and it can be small and not cause any symptoms, but it can be associated with other signs of endometriosis which can cause severe symptoms, and the commonest symptom is very severe dysmenorrhea, means period में बहुत severe pain होना. So उस टाइम पे अगर हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, sometimes we see this chocolate cyst, then again depending on what is the size of the cyst, what is the age of the patient, different types of treatments are there. मैम सुना ये भी जाता है कि सिस्ट जो है वो ओवरीज में बर्स्ट हो जाती है, तो क्या ऐसा होता है, और हाँ. अगर ऐसा हुआ है तो वो कितना डेंजरस है एक पेशेंट के लिए? हो सकता है बट रेयर है। जो ओवेरियन सिस्ट है उसके अंदर क्लियर फ्लूइड हो सकता है, उसमें म्यूसिनस मटेरियल हो सकता है, और दे कैन बी कैंसरस सिस्ट एंड दे कैन रप्चर, स्पेशली जब थोड़ी बड़ी हो जाती हैं। सो व्हेन दे बिकम टू बिग दे आउटग्रो देयर ब्लड सप्लाई एंड देन दे रप्चर, and when they rupture then it is a medical emergency which has to be treated immediately with a laparotomy, or if you can, they first we try to put in a scope to see, अगर scope से हो जाए, laparoscope से very good, but very often इसके लिए पेट खोलना पड़ता है और laparotomy करनी पड़ती है। तो ये कहीं ना कहीं खतरनाक Absolutely. परेशानी है ही, Yeah, तो इस definitely. पे अटेंशन देना बहुत ज्यादा जरूरी है। और भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं ओवेरियन सिस्ट में, जैसे बढ़ती हैं तो अब्डोमेन में आ जाती है तो इतनी बड़ी स्पेस हो जाती है, सो देन दे कैन ट्विस्ट ओवर देमसेल्फ, इट इज कॉल्ड अ टॉर्शन, तो उसके साथ भी ब्लड सप्लाई खत्म हो जाती है। जब टॉर्शन हो गया उसमें तो उसमें ब्लड नहीं जा रहा क्योंकि ब्लड वेसल भी ट्विस्ट हो गए हैं, सो उसमें भी इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें भी हैमरेज हो जाता है, उसमें भी डीजेनरेशन हो जाती है, सो दैट इज ऑल्सो मेडिकल इमरजेंसी, सो दैट ऑल्सो नीड्स टू बी ट्रीटेड। सो इमरजेंसीज कैन हैपन इन ओवेरियन सिस्ट, दैट इज व्हाई वी कैनॉट, वंस वी डायग्नोज अ ओवेरियन सिस्ट, you have to keep on following it up and you can't ignore the patient's symptoms. तो बेसिकली इसके जो सिम्टम्स हैं वो भी आपने बताया कि वो इतने ज्यादा बहुत ही बहुत prominent क्लियर नहीं है नहीं कि है, वो- बहुत प्रोमिनेंट हाँ. नहीं है, बहुत वेग है, बट दे डू समटाइम्स कॉज आल्सो irregularity of the periods. You know, periods आने बंद हो जाते हैं, स्पेशली फॉलिकुलर में, जब तक वो सिस्ट रप्चर नहीं करती पीरियड ही नहीं आता, या इरेगुलर पीरियड हो जाते हैं, या इंटरमेंस्ट्रुअल पीरियड हो जाती है, बट कॉमनली दे कॉज वेग सिम्टम्स लाइक पेन ड्यूरिंग रिलेशनशिप,
You know, they can cause pressure symptoms, as I told you, even with the fibroids, because pressure symptoms are dependent on the size. जैसे ही बढ़ता है तो किसी चीज के ऊपर प्रेस कर सकता है, you know, intestines पे प्रेस कर दे, rectum पे प्रेस कर दे, आगे urinary bladder पे प्रेस कर दे, ureter पे प्रेस कर सकता है. So they can cause pressure symptoms, or they can cause, you know, they grow big and they can, you know, undergo torsion, they can undergo rupture. So they have to be treated and followed up. बहुत बहुत शुक्रिया मैम तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए और लोगों को, महिलाओं को खास तौर पर इन तमाम परेशानियों से वाकिफ कराने के लिए, अवेयर कराने के लिए. तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर सुप्रिया मल्होत्रा, जिनसे हमने जाना यूटेराइन फाइब्रॉइड्स क्या है और ओवेरियन सिस्ट क्या है और किस तरीके से इनसे बचा जा सकता है, क्या इनके इलाज हैं. फिलहाल के इस एपिसोड में इतना ही. मुलाकात करेंगे आपसे अगले एपिसोड में एक नए मुद्दे के साथ. आप देखते रहिए पंजाब केसरी दिल्ली.